آج میں آپ کو 2020 کی مووی ایکسپلین کروں گا جس کا نام ہے دا اسپونٹینیس۔ یہ لڑکی جو جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ہمارا نام کے لڑکے کلاس روم میں دیکھتے ہیں جو اپنی پینسل کو نیچے گراتی ہے اور اسے دوبارہ اوپر اٹھانے کے لیے نیچے ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھی لڑکی بلاسٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارا کہتی ہے کہ لڑکی اچھی اور نارمل تھی، سب بچے اسے کلاس میں پسند کرتے تھے اور سب بچے کلاس سے باہر بھاگتے ہیں، اور مارا اکیلی بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی دوست نہیں تھے بلکہ ایک اچھے کلاس فیلو تھے اور سب اسے پسند کرتے ہیں۔ اور مارا مارا کلاس روم سے باہر جاتی ہے اور ٹیس نام کی لڑکی ملتی ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا۔ وہ ٹیس کو ساری باتیں بتاتی ہے لیکن ٹیس اس کی بات پر ٹرسٹ نہیں کرتی، تبھی وہ اس کے خون کے بھرے ہوئے شوز دیکھتی ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے، ہم کلاس روم دیکھتے ہیں جہاں پہ پولیس آئی ہوتی ہے تاکہ کوئی سراغ کر سکے، لیکن پولیس کو کوئی سراغ نہیں ملتا اور سب کلاس والوں کو پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں تاکہ ان سے پوچھ گچھ کر سکیں کیا ہوا تھا۔ مارا پولیس والوں کے ساتھ جوک کرتی ہے لیکن وہ اس کو کاپی دکھاتا ہے اور نہانے کا موقع دیا جاتا ہے، اور مارا پوچھتی ہے کہ کیا وہ اپنے جوتے واپس لے سکتی ہے۔ پولیس طلبہ کو نئے کپڑے دیتی ہے اور انتظار کرواتی ہے۔ ڈائلن ایک آف پینٹ بناتا ہے لیکن صرف مارا ہنستی ہے، باقی اپنے نظریات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا۔ جب لڑکیوں میں سے ایک پوچھتی ہے کہ وہ کب یہاں سے جائیں گی تو مارا کہتی ہے کہ ایسا تب ہوگا جب وہ ہم پر یقین کریں گے۔ مارا کے والدین پولیس اسٹیشن آتے ہیں اور اسے واپس گھر لے جاتے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو مارا سیدھا اپنے کمرے میں جاتی ہے اور جا کر سگریٹ پینا شروع کر دیتی ہے، تبھی اسے ایک میسج آتا ہے۔ اس میسج میں بتاتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ وہ دونوں میسج کرتے رہتے ہیں۔ اگلے دن اس لڑکی کی ڈیتھ باڈی کو دفنانے ہوتے ہیں۔ مارا اور ٹیسو دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ اپنی گاڑی سے سٹیکر اتار رہا ہے۔ پھر وہ ڈائلن جڑوا بچوں سے کوئی شو روم لینے جاتے ہیں۔ ٹیس سوچتی ہے کہ یہ بیڈ آئیڈیا ہے۔ بعد میں ہم مارا اور اس کی دوست ٹیس کو کافی شاپ میں دیکھتے ہیں۔ مارا اپنی کافی مگ میں بہت زیادہ مشروب ڈالتی ہے اور وہ دونوں اپنے بچپن کی یادیں دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں بہت چھوٹے تھے جب اس سے دوست تھے، دوستوں سے رہنے کا ارادہ کرتے جب تک کہ وہ بوڑھے نہ ہو جائیں اور پیچ ہاؤس میں ایک ساتھ رہیں۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر ایک لڑکا ڈائلن آتا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھنے کا پوچھتا ہے۔ وہ مارا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہی لڑکا ہے جس نے کل رات میسج کیا تھا۔ اس سے ڈائلن خود کہتا ہے کہ وہ وہی لڑکا ہے جس نے اسے میسج کیا تھا۔ پھر ڈائلن مارا سے کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ مشروب زیادہ لینے کی وجہ سے مارا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ واش روم جاتی ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کا فریب رات بھر جاری رہتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کیا ہوا اس کے بارے میں یہ کہتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ وہ دونوں اسے دیکھنے سے محروم ہے۔ ڈائلن اسے گھر لے جاتا ہے اور اس بعد میں باہر گھمانے کا کہتا ہے۔ مارا اور ٹیس اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ مارا کہتی ہے کہ وہ منشیات لینا جاری نہیں رکھے گی۔ ٹیسٹ پوچھتی ہے کہ کیا وہ ابھی تک روئی ہے، اسے بتاتی ہے کہ وہ ہر وقت روتی رہتی ہے۔ یہ دونوں لڑکیوں کے گھر واپسی کے کھیل کا دن ہے۔ وہ دونوں خوبصورت ڈریس پہنے اسکول جاتی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے طالب علموں نے مردہ لڑکی کے لیے ایک مزار بنایا۔ ڈائلن ان میں شامل ہوتا ہے۔ بعد میں ہم ان دونوں کو لائبریری میں بات کرتے دیکھتے ہیں۔ مارا ڈائلن سے پوچھتے ہیں کہ اسے مجھ سے پیار کیسے ہوا، تب ڈائلن اسے بتاتا ہے کہ وہ پہلے دن سے شروع ہوا تھا۔ اس نے اسے ہر چیز میں دیکھا، وہیں سے اسے پیار ہو گیا۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں اتنے گم ہو گئے کہ اب انہیں کھیل کا انتظار ختم ہو گیا۔ وہ جو کسی کے لیے تصویر لے رہے ہیں جو ان کی جرسیوں کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ گندا کریں گے۔ وہ اس کے لطیفے پر ہنسا، پھر وہ اس لمحے کے بارے میں بتاتی ہے جب آپ کو احساس ہوا کہ اسے پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ساتھ ایک اچھا لمحہ گزارا۔ اچانک گیم کے دوران کچھ ہوتا ہے اور سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گراؤنڈ میں ایک اور لڑکا بلاسٹ ہو گیا ہے۔ ڈیلن نے مارا کا ہاتھ پکڑا، اسے کسی کر وہاں سے باہر لے گیا۔ وہ کھیلوں کے میدان کے پیچھے گلے لگتے ہیں اور رومانس کرتے ہیں۔ شہر ایک اہم خبر بن جاتا ہے، تازہ ترین میموریل جہاں پر ہر کوئی شوق سے لڑکے کو یاد ہے جو اگلے دن مر گیا۔ سابق میں اس کے والدین کو اس کے اسکول کو غیر معینہ مدت کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وہ اس سے بتاتے ہیں کہ وہ اب بھی کالجوں میں درخواست دیتے رہیں گے، تو اس نے کہا سب کچھ ہونے کے بعد مارا کے اوپر ہونے والی چھڑکوں اور مذاق بنا دیا گیا ہے۔ اب اسے نہیں بتا سکتے، ان کے زمانے میں اس کے پاس جو کچھ تھا اس سے بدتر تھا۔ اب ڈائلن اس سے لینے آتا ہے، پھر آئس کریم ٹرک لے کر آتا ہے۔ وہ سب کو ہنسانا چاہتا ہے۔ وہ دونوں ایک اسکول جاتے ہیں، ان بچوں کی یادوں میں پارٹی میں کرتے ہیں، لیکن جلدی سے سیر کے لیے نکل گئے۔ وہ اپنے مشروبات کو پھینک دیتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں یہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اس سے ڈائلن خود کہتا ہے کہ وہ وہی لڑکا ہے جس نے اسے میسج کیا تھا۔ پھر ڈائلن مارا سے کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ مشروب زیادہ لینے کی وجہ سے مارا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ واش روم جاتی ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کا فریب رات بھر جاری رہتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کیا ہوا اس کے بارے میں یہ کہتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ وہ دونوں اسے دیکھنے سے محروم ہے۔ ڈائلن اسے گھر لے جاتا ہے اور اس بعد میں باہر گھمانے کا کہتا ہے۔ مارا اور ٹیس اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ مارا کہتی ہے کہ وہ منشیات لینا جاری نہیں رکھے گی۔ ٹیسٹ پوچھتی ہے کہ کیا وہ ابھی تک روئی ہے، اسے بتاتی ہے کہ وہ ہر وقت روتی رہتی ہے۔ یہ دونوں لڑکیوں کے گھر واپسی کے کھیل کا دن ہے۔ وہ دونوں خوبصورت ڈریس پہنے اسکول جاتی ہیں۔
वो देखते हैं कि दूसरे तालिब इल्मों ने मुर्दा लड़की के लिए एक मज़ार बनाया। डैलन उनमें शामिल होता है। बाद में हम उन दोनों को लाइब्रेरी में बात करते देखते हैं। हमारा डैलन से पूछते हैं कि उसे मुझसे प्यार कैसे हुआ। तब डैलन उसे बताता है कि उसे बताता है कि वो पहले दिन से शुरू हुआ था। उसने उसे हर चीज़ में देखा, वहीं से उसे प्यार हो गया। वो दोनों अपनी बातों में इतने गुम हो गए कि अब उन्हें खेल का इंतज़ार ख़त्म हो गया। वो जो किसी के लिए तस्वीर ले रहे हैं, जो उनकी जर्सियों का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ गंदा करेंगे। वो उसके लतीफ़ों पर हंसा, फिर उस लम्हे के बारे में बताती है जब आपको एहसास हुआ कि उसे पसंद करते हैं। उन्होंने एक साथ एक अच्छा लम्हा गुजारा। अचानक गेम के दौरान कुछ होता है और सब लोग इधर उधर भागने लगते। तभी हमें पता चलता है कि ग्राउंड में एक और लड़का ब्लास्ट हो गया है। डैलन ने मरा का हाथ पकड़ो से किसी कर वहां से बाहर लगा। वो खेलों के मैदान के पीछे गले लगते हैं और रोमांस करते हैं। शहर एक अहम खबर बन जाता है। ताज़ा तरीन मेमोरियल जहाँ पर हर कोई शौक से लड़के को याद है जो अगले दिन मर गया। साबिक में उसके वालिदैन को उसके स्कूल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मंसूख कर दिया गया है। वो उससे बताते हैं कि वो अब भी कॉलेजों में दरख्वास्त देते रहेंगे। तो उसने कहा सब कुछ होने के बाद मारा के ऊपर होने वाली छिड़कों और मजाक बना दिया गया है। अब उसे नहीं बता सकते उनके ज़माने में उसके पास जो कुछ था उससे बदतर था। अब डैलन उससे लेने आता है, फिर आइसक्रीम ट्रक लेकर आता है। वो सबको हंसाना चाहता है। वो दोनों एक स्कूल जाते हैं, उन बच्चों की यादों में पार्टी में करते हैं, लेकिन जल्दी से सैर के लिए निकल गए। वो अपनी मशरूबात को फेंक देते हैं क्योंकि उनके ख्याल में ये भी कोई चीज़ हो सकती है। वो हंसते हैं। वो सोचते हैं कि वाकई उम्रों को क्या चीज़ फटने पर मजबूर करती है। एक लम्हे के बाद वो रुक गए और उसके वालिद के बारे में बात करे। फिर उन्होंने अचानक बोसा दिया। वो घर से चीखें सुनते हैं और चेक करने के लिए गए कि आखिरकार वहाँ क्या हुआ। एक और तालिब इल्म मर गया। मारा टेस्ट एजेंट रोजडी से बात करने जाती हैं। वो नहीं जानती कि क्या हो रहा है। रोजडी उनसे पूछती है कि क्या वो हमारी मदद कर सकते हैं। वो डैलन ट्विंस के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि एजेंट ने उसे लाने को कहा था। मनशियात मारा सोचती है कि उसकी वजह ये नहीं कि पुलिस को लगता है कि मनशियात दारा की सबब बन रही हैं, बल्कि सिर्फ तमाम इम्कानात को जांचने के लिए। वो उन्हें बताती है कि वो सबसे कुछ खरीदेगी। वो तीनों उस जगह की तरफ गाड़ी चलाती हैं जहाँ जुड़वा बच्चे अपना ज़ख़ीरा छिपाते हैं। वो मारा को बताते हैं कि वो जल्दी शहर छोड़ रहे हैं और वो उन्हें डैलन के बारे में बताती है जब वो अचानक उसके साथ टैक्स कर रही थी। तभी ट्विंस में से उसका भाई ब्लास्ट हो जाता है और दूसरा जल्दी से ड्राइविंग सीट पे आता है और ड्राइव करता है। तभी उनकी कार भी तबाह हो जाती है और वो मारा को ढूंढते हैं और वो मारा को जंगल में देखने जाती है। मारा पानी से खून साफ करे उसने उसे कहते हुए गले लगाया कि उसे लगता था कि वो भी कार में मर गई है। वो उसे एक स्वीट केस चलाया और वहां पहुंचने से पहले रुस्टी को बुलाया। अचानक वो सूट में किसी को देखता है कि वो उन्हें फौरन दादा देख रहे हैं। उन दोनों को पकड़ कर ले गए। हमारा अस्पताल जब एक डॉक्टर उससे बताता है कि वो मदद करने के लिए मौजूद है तो वो घबराने लगती है, लेकिन देखते ही डैलन उसके साथ वाले बिस्तर पर है। वो एक साथ उलझन में है। डॉक्टरों को एक रात को डैलन जागता है और उससे बताता है कि पूरी क्लास में वहाँ है। वो अपना बिस्तर उसके करीब धकेलती है और उसे सवालात के बारे में बताता है। वो से अपनी गर्लफ्रेंड के अदर वो सब पसंद करते। हुकूमत से कहा तौर पर क्लास को कत्ती न कर दिया है। डॉक्टर के सवाल तालब इल्म से उन बच्चों के बारे में पूछते जो उनके ख्वाब और हरकत के बारे में आ चुके हैं। साथ ही वो कॉलेज में क्या करना चाहते हैं। मारा उसका जवाब देती है कि वो जिंदा रहना चाहती है। मारा टीचर बाद में परेशान हो जाती है। ये कॉल हो सकता है कि वादा करता है कि ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं कि अगर मारा चाहती है तो क्या वो अगले दिन जाएगी। क्लास में एक तफरी चैम्बर में मारा शिकायत करती है कि वो बोर हो रही है और कहती है कि उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। वो धमाकों की बातें करने लगते हैं। दो लड़के बहस करते हैं क्या ये लाना या नहीं। डैलन ने एक गूंगा ख्याल शेयर किया और हर कोई उसका मजाक उड़ाता और मारा बाद में शावर में बाहर निकलते एक सरकारी एहलकार नौजवान को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाता है और उनके तमाम सवाल के जवाब देने की पेशकश करता है। मारा को समझ नहीं आता कि वह असल में उनकी मदद के लिए कर रहा है या उनका मजाक उड़ा रहा है। एहलकार बच्चों में मुंह तोड़ जवाब देता है, उस पर हंसता है, लेकिन जल्दी से गुस्सा आता है। फिर अचानक एक लड़का फट जाता है और दूसरा भी तबाह हो जाता है और वो सब डर जाते हैं। जबकि नींद के टेस्ट हो रहे हैं। सहूलत में बच्चों के वालिदैन सहूलत के बाहर इंतजार करते हैं। डॉक्टर बाहर आकर जोड़ों में से किसी एक को बताता है कि उनके बच्चों को क्या हुआ है। बच्चे मरते रहते हैं। तमाम अद्वियात के टेस्ट हैं वो उन्हें दे रहे हैं, नाकाम। वो सब अपने अंदर मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक के बाद एक नौजवान फटते रहते हैं। और यहाँ तक कि रेस्टलेस की सहूलत में काम करने वाले डॉक्टरों को भी जो नीली गोली दी जा रही है उससे लगता है कि उस सहूलत में मौजूद हर शख्स काम करना शुरू कर रहा है। फिर उन्होंने बच्चों को उनके वालिदैन के पास जाने दिया। हमारा के वालिदैन घर की तरफ गाड़ी चलाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सिटी में कोई सजावट नहीं क्रिसमस की। उसके वालिदैन ने उसे बताया कि धमाकों की वजह से कोई क्रिसमस नहीं मनाएंगे। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो उसके बाद एक दरख्त के साथ उसे हैरान कर दिया। उनमें से तीनों दरख्त को सजा रहे हैं। जब उसके वालिद ने उसे वैप दिया और उसे बताया कि वह छुपने में बहुत खौफनाक हकीकत यह है कि वह तम्बाकू नोशी करती है और उन सब मिलकर खाया। सोने से पहले जवानी और उसकी ग्रेजुएशन के बारे में बात की। फिर मरा और वो एक नीली गुल लेती है और सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डालन उसके घर में है। वो दोनों पहली मरतबा एक दूसरे के साथ सोए थे। मारा उससे पूछती है कि क्या वो
यहाँ महफूज है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता, फिर वो कहता है कि वो उसे स्कूल दोबारा ले जाएगा। वो कहती है कि वो उसे स्कूल में नहीं जाना चाहती, जहाँ उस स्कूल में सिर्फ एक ही हमारा था और वो उससे बोरिंग लगती है। एक टीचर जो उन्हें एक स्टोरी बताता है जो बहुत गंदी है। बाद में रोस्टी मारा का ब्लड प्रेशर ले रही है और वो नीली गोली के उर्फी नाम के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स पैटर्न जो बारह को पसंद नहीं करती। रोजरी को ये नहीं लगता कि वैलेंटाइन डे खत्म हो गया है। मौलाना डिलान के बारे में सजाया और उन दोनों में सिर्फ उनके लिए एक पार्टी है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे वापस कहती है कि वो उससे भी हंसते हैं। फिर डालन उसे मौसम गर्मा के साथ गुजरने को कहता है। अगर वो नहीं मरते तो टेस और मारा अपने खाने के इंतजार में है, लेकिन वेटर्स भी उनका खाना लाने से डरते हैं। उनके पास वो हर रोज छोड़ देते हैं। डॉक्टर उनके स्कूल में होता है, उनको स्नोज बटन भरने की वजाहत करता है। वो कहती है कि जबकि ये इलाज नहीं, ये एक इलाज है। डॉक्टर को एक बात बनाने के लिए एक रजाकार मिलता है, लेकिन जैसे ही बच्चा उसकी हिदायत पर अमल करना शुरू करता है वो अचानक फट जाता है और फिर एक और फट जाता है और फिर तीसरा फट जाता है। वो सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन बच्चे बस उड़ते रहते हैं। मारा डालन के साथ और हंगामा लड़ाई में टच नहीं कर सकती। ये सब भाग रहे हैं और बच्चों की तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फटते रहे, मारा पीछे रह जाती है और जब स्कूल का साथी उठता है, बच्चे स्कूल से बाहर निकलता है। डालन उससे बाहर मिलता है और वो गले लगती है। अचानक डालन उसके मारियो के घर की सैर के सामने फट जाता है। खून में लथपथ रोस्टी उसे ढूंढ लिया और उसे अस्पताल ले गई। उसके चमड़े का एक टुकड़ा उसके सर में मारा। उसकी माँ अस्पताल जाती है और उस रात धोने में मदद करती है। वो अपने वालिदैन के दरमियान सोती है। वो वाकई अफसरदा हो जाती है और बातचीत से इनकार करते गोली लेना बंद करती है। डैलन का जनाजा होता है और टेस उसे अपने कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मारा वहाँ बैठी वीडियोस देखती है। एक मौका पर डैलन के बारे में वो अपना कमरा छोड़कर अपने वालिद के काक टेबल में आती है। मारा ने टेबल को मेरे तमाम दोस्त और बॉयफ्रेंड मर चुके हैं। वो पीती है, शराब पीती है और उसके वालिद उसे बनाते हैं कि वो उसे निपटने के लिए काफ़ी नहीं। मारा मजाक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नशे में होती है। वो उस रात अपने घर से नशे में निकलती है। टेस के घर दिखाई देती है जो अभी तक नशे में है। वो स्कूल जाने के बारे में बहस करते हैं। टेस उसकी मदद नहीं करना चाहती क्योंकि जो भी उसके साथ हो रहता है वो ब्लास्ट हो जाता है। वो फेडरल का स्टोर से शराब चोरी करती है और उस स्टोर के सामने उसका इंतजार कर रही है। और जब माना ने उसकी तरफ बोतल फेंकने की कोशिश की तो वो कार की खिड़की तोड़ देती है। बाद में वो अपने वालिदैन से उस बारे में और मुसलसल नशे में रहने के बारे में बहस करती है। वो उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मारा उनसे दूर रहना चाहती है क्योंकि वो भी फट सकते हैं। लेकिन वो साथ खेलना और उन्हें बेहतर महसूस नहीं करना चाहते, उसकी वजह से कि वो भी जल्दी मर सकते हैं। मारा अपने कमरे में आती है और प्रॉम में जाने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर एक मैसेज बोर्ड में दाखिल होती है जहाँ दूसरे तलबा मारा को बहुत गाली दे रहे होते हैं कि उनकी वजह से वो सारे बच्चे मार रहे हैं। लेकिन मारा उन पर यकीन करती है कि अपने स्कूल में और पहले बैलर की यादगार, फिर उसके क्लासरूम का दौरा करती है और आखिरकार वो जगह जहाँ डैलन की मौत हुई है प्रोम की रात है और मारा झूले का इम्तिहान पर बैठी है और वो अपने मुस्तकिल के बारे में बात कर रही है। एक बार फिर वो मारा को बताती है कि वो पेस्टल मारा को छोड़ने से पहले उस रात को छोड़ रही है कि वो हमेशा उसकी बेहतरीन दोस्त रहेगी। मारा आखिरकार नशे में धुत हो जाती है। अंदर का माहौल खौफनाक है। कोई अपना काम कर रहा है और उस पर हंस रही है। फिर स्पाइक पर जाता है उसके उस्तादा को घुसा उसके बारे में कुछ न करें। वो उसे अपने साथ ले जाती है और अकेली पीती है। बाद में वो स्टेज पर जाती है और कहती है कि उसे सबको मारने पर अफसोस है, लानत होने के लिए माजरत। मोरा का कहना है कि वो सबको तकलीफ देने के लिए खुद से नफरत करती है और फिर अपना डिप्लोमा कबूल करती है जो उसके बाद की लड़की है। सेठ मारा बुजुर्ग में वही अचानक दूसरी लड़कियां भी यही कहती हैं। मोरा डैलन की कब्र पर जाने के लिए कब्रिस्तान जाती है। वो उसे बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है और उसकी कब्र पर लेट गई। उसकी माँ ने उसे वहाँ पाया और उसके साथ शामिल होने को कहा, फिर उसके पास लेट गया। मारा ने जनाजे में ना आने पर माजरत की और अपनी माँ को बताया कि उसने डैलन के साथ पहली बार मुलाकात की। उसकी माँ का कहना है कि उसने उसे बताया था कि उसने मारा के बाल पकड़े हुए थे और लड़की ने उससे पूछा कि अगर उसे लगता है कि ये बुरी खबर है, तो माँ कहती है कि उसने सिर्फ ये सोचा कि मोरा को बहुत तकलीफ है और वो नहीं जानती कि उससे कैसे निपटा जाए। मोरा ने उसे बताया कि उसे लगता है कि वो मर रही है और वो हर वक्त खौफजदा रहती है। डैलन की माँ का कहना है कि ज़िंदगी कभी भी ऐसा ही महसूस करती है और उनमें से कोई भी इस लायक नहीं जो उनके साथ हुआ। मोरा उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और जब वो अपना सारी लाती है तो लड़की उसे थाम लेती है। वो घर वापस आती है। अगले दिन उसके साथ उसका वालिदैन इंतज़ार कर रहे होते हैं। मारा उनसे माफ़ी मांगती है और वो सिला कर लेते हैं। बिलाखिर वो अपनी पट्टी उतार देती है और डैलन को याद करती है जैसे वो चंद महीनों के बाद दाग को देखती है। उसने धमाका किया। मोरा ने रोस्टी को अलविदा कहा। वो स्नूज बटन लेना जारी रखती है और अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ती है। मोरा कॉलेज और डैलन के ट्रक के लिए रोज़ाना हो रही है। इसके वालिदैन परेशान है, क्या है ये महफूज है, लेकिन फिर भी उसे जाने दें। वो अलविदा कहते हैं और वो गाड़ी चलाती है। वो स्कूल के पास से चलती है जो तलीमी साल के अख्ताम
तक तबाह होने वाला है। 31 तलबा की मौत हो गई, मारा जिंदा रही। हालांकि वो नहीं जानती, क्योंकि वो कहती है कि सबक ये है कि सब मरते हैं, और ये कि आपको ज़िंदगी गुजारनी है जिस तरह से आप मार्क करना चाहते हैं। इसके मुस्तकिल का तस्वर कर सकते हैं। वो लड़के में क्या करेगी, डेट करेगी या शादी करेगी। वो सोचती है कि वो माँ भी होगी या शायद सदर भी। एक दिन के इख्तिताम पर मोटी चीज़ें होने जा रही हैं। ये नागरेज़ अब इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं करेगी किसी ऐसी चीज़ के लिए जो शायद उसके लिए कभी ना आए। मारा एक मुश्किल का तस्वर करती, जहाँ उसकी खाला एक्सरो इसलिए मुकम्मल तौर पर बेच हाउस में वो चाहते थे कि वो अब खौफजदा नहीं होगी, क्योंकि वो किसी भी लम्हे मार सकती है।